خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اینڈ گڈ مارننگ ایز ویل۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے تھاٹس اس سارے معاملے پر ہمارے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس نہج تک پہنچ جانا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو احتجاج کرنا پڑ گیا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کے لیے ضروری سہولیات ان کو دی جائیں؟ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ غلط اور جھوٹ کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے سیاسی ایکشن نہیں لیتے۔ اگر 2014 کا دھرنا بہت پرانا ہو گیا ہے، لیکن جس بنیاد پر وہ لیا گیا تھا کہ 2013 کا الیکشن غلط ہے، وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ خود بانی چیئرمین نے کہا کہ جی 35 پنکچر والی سٹوری تو ایک سیاسی بیان تھا، یعنی جو پورا ان کا بیانیہ تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہے، وہ انہوں نے بعد میں اس کو اپنے منہ سے بڑی معصومی سے رد کر دیا کہ جی ہم 126 دن رہے، ہم نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، ہم نے چائنیز صدر کا دورہ نہیں ہونے دیا جس پہ سی پیک میں دستخط ہونے تھے، لیکن اب وہ سیاسی بیان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو پوری ہم نے ایپیسوڈ دیکھی ہے، اس کی کیا بنیاد تھی؟ اس کی بنیاد تھی کہ ایک وکیل نے میڈیکل تشخیص کر کے ہمیں بتا دیا کہ جی 85% بینائی جا چکی ہے، نعوذ باللہ، بانی چیئرمین۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ناچ شروع ہو گیا میڈیا کے اوپر، سیاسی پہ، جو کہ اب واضح ہو گیا کل کی رپورٹ سے کہ وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ بینائی جو ہے وہ 15% نہیں رہ گئی، وہ 70% اس وقت موجود ہے اور بہتر ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سادہ وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، جس کی طرف کم توجہ دی گئی، کہ 24 جنوری کو ہی جیسے ہی یہ محسوس ہوا کہ بانی چیئرمین کی جو آنکھ ہے اس کا کوئی عارضہ بڑھ رہا ہے، اس کا اسی وقت ان کو پیمز میں لے جا کر علاج شروع کرا دیا گیا، اور ہم نے اس کا آؤٹ کم دیکھ لیا کہ وہ کتنے بہتر ہو گئے پہلے سے۔ تو لہٰذا جو مریم نواز صاحبہ نے کل کہا وہ بھی درست تھا کہ انہوں نے وہ تمام سہولیات دی گئی، وہ اس کو وکیل نے کنفرم کیا کہ جی اس تمام سہولیات موجود ہیں، اور جو غلط بات کی تھی وکیل صاحب نے اس کی درستگی ہو گئی۔ اور جو بات پھر بعد میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے بھی کی کہ جس ڈاکٹر نے ان کا ایگزامینیشن کیا ہے، ڈاکٹر ندیم قریشی، جو الشفا اسپتال جو آئی ہاسپٹل ہے راول پنڈی میں، اس کے ایک سربراہان میں سے ایک ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کا نام ہم نے دیا تھا اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر۔ تو لہٰذا جب یہ بات، تو اس کا مطلب اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جس میں سب سے افسوسناک پی ٹی آئی کا اپنے ہی صوبے میں خیبر پختونخوا میں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے، اس کے رہنے والوں کی زندگیاں اجیرن کی، 10 جانیں گئیں، اور بالآخر وہ تمام معاملہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ اس کی بنیاد پر ساری سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی۔ یہ جو ان کا مطالبہ ہے بالکل ٹھیک، کہ ذاتی معالج تک رسائی دی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بہت ہی زیادہ کوئی غلط مطالبہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پھر ان کی فیملی ممبرز کی ان تک رسائی جو ہے وہ بھی کافی مشکل بنائی گئی ہے ان کے مطابق؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھیں تو میاں صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے جو ذاتی معالجین تھے ان تک ان کو رسائی حاصل تھی، اور پھر وہ علاج کے لیے باہر روانہ بھی ہوئے تھے۔ جی میں یہی تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جس ڈاکٹر نے ابھی پرسوں بانی چیئرمین کا معائنہ کیا اس کا نام ہم نے دیا تھا، تو لہٰذا وہ ذاتی معالج ہی تھے ان کے، کیونکہ خان صاحب ذاتی معالج ہیں۔ پی ٹی آئی پھر ابھی تک احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ میں اس پر حیران ہوں۔ نہیں، وہ دیکھیں احتجاج اپوزیشن ہے، ان کا کام ہے احتجاج کرنا۔ نہیں، وہ اس چیز کو بیس بنا کر احتجاج کر رہی ہے نا کہ ان کے مطالبات بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق پورے نہیں کیے گئے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو بانی چیئرمین کے ذاتی معالج ہیں، جی وہ آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کسی کو کہنا تھا کہ جی آپ اس کو دیں، تو ان کے ایڈوائس پر ڈاکٹر ندیم قریشی کو بورڈ میں لایا گیا۔ تو لہٰذا اب اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو آنکھ ہے الحمدللہ وہ 70% اس میں بینائی اس وقت موجود ہے، اور اس میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے،
24 اور ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये अहम तरीन बात है कि जो फर्ज था पंजाब हुकूमत का, उसने आज नहीं इस तमाम सियासी जो खलफशार हुआ है पिछले 4 दिनों में, उसमें नहीं, 24 जनवरी को ही वो टीका लगा दिया गया था, जिसका अब बेहतर नतीजा हम खान साहब की खुरम दस्तगीर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, इलाज जारी है और अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। सर ठीक है, अब यहाँ पे जो कि है 6/9, एक सवाल पूछूं, आपने कहा कि एहतजाज जारी है और अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है, तो अपोजिशन ही एहतजाज कर रही थी और कौन कर रहा है? नहीं, इलाज जारी है और अपोजिशन का इलाज एहतजाज जारी, भी ओके, जारी है। मेरा सुनने में गलती तो हुई, सर ये 6/9 कल तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो मीडिया पे कोट किया जा रहा था वेरियस आउटलेट्स के ऊपर, और सेकंड इंजेक्शन भी फरवरी की डेट्स में आगे जो कि है वो स्केड्यूल्ड है। अब यहाँ पे मैं एहसन इकबाल साहब को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा इंटरनेशनल फ्रंट्स पे भी और लोकल फ्रंट्स पे भी आके जब मीडिया से और वाइडर ऑडियंस से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस के लिए स्टेबिलिटी पहले ज़रूरी है और फिर प्रोग्रेस आती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई गैप आया, कोई बात उठाई गई, कोई वजह मिल गई कि जिसकी वजह से अब लोग सड़कों पे हैं और पाकिस्तान के एक हिस्से में सड़कें बंद की जा रही हैं? तो क्या ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अगर इन्हें टाइम से पहले संभाल लिया जाए या पकड़ लिया जाए, लूज एंड्स को बांध लिया जाए, तो ये वाइडर स्टेबिलिटी का बायस बन सकते हैं, लीडिंग टू प्रोग्रेस एंड नॉट द अदर वे अराउंड? जी, हमने तो जो लूज एंड था वो टाई कर दिया था 24 जनवरी, आज से कोई 3 हफ्ते 4 दिन पहले। ठीक, लेकिन अगर एक जमात जिसका रिकॉर्ड है, जो इंतशार पर बजिद है, चाहे वो 2014 में था, चाहे वो 9 मई 2023 था, चाहे वो 24 नवंबर 2024 था, और वो अगर अपने ही सूबे को जो है वो खराब और कत्ल करने पर बजिद है, तो फिर देखिए जो वफाकी हुकूमत है उसका एक्शन, तो फिर ऐसे मामले में एक बड़ा ही सीरियस मामला हो जाए कि अगर हम कहीं भी एक सूबे की सड़कें हमने खोलनी है जाके, क्योंकि उसकी जो सूबाई हुकूमत है जो 13 साल से वहां हुकूमत कर रही है, अगर वो ये फैसला करती है कि हम उन्होंने सियासी तौर पर सड़कें बंद करनी है। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो असल यार्ड स्टिक है वो ये नहीं है कि अपोजिशन एहतजाज करती है या नहीं करती। असल यार्ड स्टिक सियासी स्टेबिलिटी की ये है कि चारों सूबाई असेंबलियों में, कौमी असेंबली में और सेनेट में स्टेबल वर्किंग मेजॉरिटीज है। इसका मतलब ये कि उस तरह के वहां कोई जो है वो सरासीमगी नहीं है, एक स्टेबिलिटी मौजूद है। और एक जमात जो है, और ये पाकिस्तान के अवाम पर वाज़ेह होना चाहिए कि कौन सी जमात है जो मुस्तकिल, एक दफा नहीं बार बार पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है कि वो अपनी जिंदगी, कारोबार, उनका जो रोजगार है, उनकी सेहत, तालीम, उसको बिला रोक टोक कर सकें। तो एक ही जमात है जो बार बार वो उसमें उस जो आजादी है उसमें रखना डालती है। पॉलिटिकल टेंपरेचर बढ़ने का बायस बन सकता है। एहतजाज का हक तो नहीं, देखिए आईने पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान के अवाम का जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक था, तो अब 10 जाने गई, आप उनको किसके हाथ डालेंगे? जो पिछले 4 दिनों में लोग नहीं पहुंच सके अस्पताल, लेकिन अब बात हो गई हमारे भाइयों और बहनों की। तो लिहाजा ये अब हमें अगर आगे बढ़ना है, हम पूरी कोशिश जारी रखें, और यही एक बार फिर ऑफर मैं भी कर देता हूं। लेकिन टू अंडरस्टैंड, आपने वैसे क्लियर कर दिया कि उनका मुतालबा जो है वो मान लिया गया था कि उन्हीं के एक लीडर की रिकमेंडेशन के ऊपर या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर एक आई स्पेशलिस्ट मौजूद है उस बोर्ड के अंदर। फिर ये समझ नहीं आ रही कि फिर भी पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है, और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता है? जी, इसका तो मैं सिर्फ एक जाती राय दे सकता हूँ कि पीटीआई का पाकिस्तान के अवाम की फलाह में कोई भी दिलचस्पी नहीं। उनका वाहिद इंटरेस्ट जो है उनके बानी चेयरमैन है और उनके नाम पर इंतशार और फसाद फैलाना है। हालांकि 13 साल से जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, क्या वोटों के साथ ये जिम्मेदारी नहीं आई कि उस सूबे के लोगों की सेहत, तालीम, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए? लेकिन आप देखिए कि वहां कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। ये तो दिलचस्प एक कॉन्ट्रास्ट है जो कल मरियम नवाज साहबा ने गुजरात में किया। मैं भी वहां मौजूद था उस तकरीब में, कि उन्होंने कहा कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं अपने नौजवानों को, मर्दों खवातीन को
टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ओवरऑल सूबे की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई आवाज आपको खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आती। तो वक्त तो ये है कि अगर हम संजीदा हैं सियासत को और जमहूरियत को और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, कि आपस में हाकमियत का मुकाबला करें। हमें मालूम हो, मुझे और आपको, कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तो बेहतर सेहत और तालीम है, वहाँ की सड़कें सबसे बेहतर हैं, वहाँ जो है आपके अस्पतालों में जाए तो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है, पर ऐसा नहीं है और हर वक्त इसी पर जोर रहेगा और एक सियासी मसाला ऑफ कोर्स हम सबको मिलता रहेगा, लेकिन असल इशू पाकिस्तान के अवाम की फलाह है जो पीटीआई का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो डील की बातें होती रही हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पिछले 1-2 वीक से, ये जब से एहतजाज चल रहा है तब से ये बातें भी चल रही हैं। कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं, जिनकी चिड़िया बड़ी मशहूर है, कि भाई शायद कोई बात हो गई है और शायद लंदन चले जाएं। ऐसा कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? कोई बातचीत चल रही है या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बातचीत हो गई या हो जाएगी? जी, बातचीत हमेशा जारी रहती, क्योंकि कोई ना कोई ख़वातीन और हज़रात ये पेशकश लेकर हुकूमत के पास आते रहते हैं, लेकिन ऐसा इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। उनको पाकिस्तान के जो बानी चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के अवाम के तकरीबन 60 अरब रुपए जो हमारे थे, आपके थे, आपके नाजरीन के थे, उसकी अमानत में खयानत करने की जो इस वक्त कैद है वो इसके लिए मौजूद है। और ये बात कि जी कोई डील के नतीजे में कोई ऐसा इशू होगा, इस वक्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और वो यही बता रहे हैं कि जनाब उनको जो डॉक्टर रेकमेंड किया था, उनके अपने ही डॉक्टर ने, वो उस बोर्ड में मौजूद है। तो फिर सवाल अगेन यही है, तो पीटीआई एहतजाज किस बात पे कर रही है? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई नहीं दी जा रही है? अगर कोई पीटीआई का रहनुमा आकर इस बात को निगेट करना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन है, कोशिश करेंगे कि हम भी आपसे रब्ता करें। और आपका डेफिनेटली ये बड़ा ज़रूरी है। और ये जो डील की बातें की जा रही हैं, अब उसके ऊपर क्या नतीजा निकलता है, गेस विल हैव टू वेट फॉर दैट। We will have to wait for that, but the issue is one that is developed in the thought first and then sinks into the reality. अब उस reality की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज़रा हम उन प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करेंगे कि जो हमारे माशरे में हमारी फैमिलीज़ और हमारे सोशल सर्कल्स और ऐसे पार्ट्स में आती है कि जहाँ से सोसाइटी डेवलप हो रही है। अच्छा, समटाइम्स कुछ ऐसे फैसले सामने आ जाते हैं कि आप एक सेकंड के लिए ना टीवी के सामने रुक कर देखने लगते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर फैसला हुआ, वाओ, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और वो कौन सा फैसला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।